space curve में you have a concept of binormal. So basically torsion it was rho is equal to dB over ds. ये आपको क्या arc rate at which the osculating plane turns about the tangent. So it's torsion for a plane curve, torsion will be zero. है ना? A space curve is a plane curve if torsion is zero. It's a result. So you can say it will tell you the how the curve is twisted. So for this helix, as I told you, at every point you have different torsions. है ना? हर उस पे change हो रहा है oscillating planes. At every point oscillating plane is change. Circle का what is the torsion for circle? What is the torsion? Because why? Because 2D curve. Because circle is a plane curve. Because circle is a plane curve. sir. Yes. Circle के लिए torsion is zero. Yes. Okay. So we can find here one formula we derive also. It was coming torsion is equal to minus b dash n. It was the formula. और अगर ऐसे फंक्शन आप लें, in general it was minus b dash s n s And dash. and b dash n s. So now we can derive this formula for the generalized parameter also. It is the formula in terms of natural parameter. You will see that formula in terms of natural parameter it is always comparatively easy. Now if you have expression for torsion t, पहले expression निकालते हैं इसका. Expression for this torsion. It is the formula and अगर इसे हम और solve करके r के term में लिखना चाहें, basically आपका curve will be given in terms of rs. If I am taking curve in terms of rs, then what is the formula in terms of r? ये formula आपका b dash के term में, जहाँ पे आपको पहले b निकालना पड़ेगा, फिर n निकालना पड़ेगा, और direct I can find in terms of r. So you know that torsion is minus b dash n. अभी जो हमने लिखा है minus b dash n. Or you can write this b dash. I can write what? I can write minus n, and b dash will be what? B is what? T cross what is B? T N B. है ना? So B I can write T cross N. yes. T cross n. T cross N and is dash because I have B dash in the form. Now this dash I can apply by using product of two terms. So it will become by parts minus n times. So T dash cross N plus T क्रॉस एन डैश है ना, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला वैसे लग जाएगा जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला. और व्हेन यू विल टेक माइनस एन, नाउ माइनस एन इज टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस एन विद वेक्टर एन इज हाउ मच? जीरो. एन डॉट एन है ना, व्हेन यू विल टेक विद दिस एन, सो इट विल बिकम एन क्रॉस एन. तो n क्रॉस n is 0. सर t डैश की जगह r डबल डैश है नहीं, अभी नहीं लिखा है, अभी पहले सॉल्व करेंगे फिर रखेंगे. ठीक है, अभी मैं इस टर्म को पहले सॉल्व करता हूँ. सो नाउ व्हेन यू विल टेक द प्रोडक्ट, तो माइनस n क्रॉस n विल बिकम 0. यू विल बी हैविंग ओनली माइनस n टाइम्स t क्रॉस n डैश है ना, ये टर्म बचेगा क्योंकि इट विल बिकम 0. a डॉट b क्रॉस a डॉट b क्रॉस c, a dot b cross c, this is nothing but minus b dot a cross c है ना, ये लिख सकते हो. तो जब इसको ये आपका क्या है, a dot b cross c, तो यहाँ पर जब n cross n लिखेंगे, n cross n is 0. You have this. Is it clear? Or you can say
So this will become by minus sign. Again, I am applying this formula. So minus sign will be adjusting. I am taking t outside. So it will become t times n cross n dash. Okay. By this formula. So you got t n cross n dash. Now, or this I can write what? This can be written as in terms of bracket t n n dash, है ना? ये लिख सकता हूँ मैं a dot b cross c को in the bracket term. And it's a notation. Yes. Now just put the value of all these in terms of r. So you know t can be written as t was how much? R dash, R dash. है ना? Yes, sir. And n was how much? R double dash upon mod of r double mod dash. of r double dash. mod of r double dash. या अगर मैं कप्पा के टर्म में लिखूं तो उसे कप्पा भी लिख सकता हूँ, है ना? यही फॉर्मूला था. Kappa n. कप्पा n नहीं, कप्पा ही तो था. और आपका जो कर्वेचर का फॉर्मूला था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. And n dash. N dash will be how much? N dash will become. Sir. इसी को अब n dash का मतलब क्या है? इसे आप फिर से डैश कर दीजिए. इसको जब आप फिर से डैश करेंगे तो बाय फ्रैक्शन बता देना. है. कप्पा बता दिए, कप्पा कैसे बोल रही है? ये फॉर्मूला है n का. जो n था आपका, n was r डबल डैश अपॉन मॉड ऑफ r डबल डैश, है ना? और अगर याद हो कप्पा को हमने क्या निकाला था? मॉड ऑफ r डबल डैश. कप्पा यही तो आया था. Mod of R double dash. Mod of r double double dash dash is equal to kappa. Yes, sir. तो Yes, वही तो sir. है. तो यहाँ कप्पा रख दिया नीचे मैंने इसको, ये बन गया. ठीक है. ठीक. अब ये n है. अब आई वांट टू फाइंड n डैश. तो इसका जब n डैश करेंगे तो बाय फ्रैक्शन फार्मूला, डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो क्या बन जाएगा? कप्पा r ट्रिपल डैश minus r double dash डबल डैश kappa dash. Kappa dash. इसे ऐसे कप्पा. तो ये कितना हो जाएगा? r ट्रिपल डैश माइनस r डबल डैश एंड कप्पा डैश लिखिए इसे क्या? बोलिए. Kappa dash. Kappa dash. कप्पा डैश क्या आएगा यहाँ पर? तो ये है आपके पास. कप्पा डैश कितना आएगा? इसका अगर मैं डैश करूंगा तो क्या आएगा? ये 0 0 0 सर. है 0 जाएगा ये, 0 कहाँ है? है ना? क्योंकि ये मॉड है. यस सर, 0 आ जाएगा. तो ये कितना बचा फिर अगर हम इसे सॉल्व कर लें? तो फाइनली यू विल बी हैविंग R double dash अपॉन के. एक मिनट रुक जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन में क्या आएगा? ये आएगा आपके पास फाइनली यू हैव r डैश r डबल डैश अपॉन कप्पा, और यहाँ क्या टर्म रह गया फिर? सिंपल r ट्रिपल डैश अपॉन कप्पा ही रह गया खाली. ये कैंसिल हो गया तो, है ना? अब यहाँ पे कप्पा आई कैन टेक आउटसाइड, तो दो कप्पा है, स्क्वायर बाहर आएगा, है ना? एक इससे एक इससे, तो क्या बचा आपके पास? So you have this equal to 1 upon कप्पा स्क्वायर r. भाई ये ले लिया ना हमने, इससे बाहर आएगा, इससे भी. ये ब्रैकेट ये प्रोडक्ट है क्योंकि, तो प्रोडक्ट का मतलब कि दोनों में है कप्पा. तो r डबल डैश r ट्रिपल डैश, r डैश r डबल डैश r ट्रिपल डैश. ओके, ये तो आएगा. सो इट इज द फॉर्मूला. देखो सिमेट्रिक फॉर्मूला है. कप्पा स्क्वायर की वैल्यू आप चाहे तो पुट कर दीजिए. कप्पा स्क्वायर कितना हो गया? कप्पा कितना था? मॉड ऑफ r r कप्पा वाज मॉड ऑफ r डबल डैश. स्क्वायर करेंगे तो इसका मॉड स्क्वायर कर दीजिए आप, है ना? सो यू गॉट r डैश r डबल डैश r ट्रिपल डैश अपॉन
Kappa square means mod of r double dash square. So I can write r double dash dot r double dash. So it is the formula for the torsion. This is your torsion. नहीं torsion था ये. So this is the formula in terms of RS. अगर आपको कोई R कर्व दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उसका डैश निकालेंगे, डबल डैश, ट्रिपल डैश और उसकी ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेंगे एंड डेनोमिनेटर को कर देंगे इससे. ये क्या आपका स्क्वायर है. इट इज व्हाट R डबल डैश इसका स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? Square of R double dash. हाँ तो R ये स्क्वायर ही तो होता है R डबल डैश डॉट R डबल डैश. वो लिखा है. सो इट इज टाउ इन टर्म्स ऑफ नेचुरल पैरामीटर. ठीक है. अगर कार्टेशियन में गिवन है तो इसी को इफ द इक्वेशन ऑफ सर ये 1/कप्पा स्क्वायर कैसे हुआ था, ये बात समझ में नहीं आई. दो बार मतलब अरे एक ये ही चीज प्रोडक्ट है कॉमन ना, है ए ना, डॉट ये बी बार क्रॉस निकलेगा सी. दो बार. अरे ये ए डॉट बी क्रॉस सी प्रोडक्ट के टर्म में बाहर लोगे तो इससे बाहर आएगा, इससे बाहर आएगा. प्रोडक्ट में के दो बार बाहर आएगा ना. इसमें भी के है, इसमें भी के है. अच्छा अच्छा ठीक है प्रोडक्ट ठीक है है. ये. हाँ भाई अगर ए अपॉन के बी अपॉन के है तो क्या लिखोगे 1/k स्क्वायर ए बी. ये तो लिखेंगे. ये प्रोडक्ट है ये. इट इज व्हाट इट इज दिस ए डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है. So if the equation of the curve is given in Cartesian coordinates, suppose Cartesian coordinates में है, अगर Cartesian मतलब कि x y z में suppose x is a function of xs, y is a function of ys and z is a function of zs. Then this tau will become, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म को ओपन करके लिख सकते हैं. तो आपकी जो न्यूमरेटर है ये क्या है? इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ x डैश y डैश z डैश x डबल डैश y डबल डैश z डबल डैश एंड ये डॉट बी क्रॉस सी को ऐसे तो लिखेंगे आप, है ना. It is the numerator divided by mod of r double dot square. तो mod of r double dot square क्या होगा? mod क्या होता है? अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर. क्या डबल डैश है प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो डबल डैश आएगा ना यहाँ. यस सर. y डबल डैश स्क्वायर प्लस डबल डैश. अब इसका अंडर रूट होता है लेकिन नीचे स्क्वायर है तो अंडर रूट विल बी रिमूविंग. स्क्वायर रूट नहीं है इसका, है ना. सो इट इज इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन. अगर इफ कर्व इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, इस तरीके से कार्टेशियन में दिया होता है स्पेस कर्व आपका इन 3 डायमेंशन. इफ इट इज इन जनरलाइज्ड पैरामीटर, एक्सप्रेशन just a minute students. Yes. So now we have expression in terms of generalized parameter. Expression for R is equal to RT. If curve is in RT, that means in generalized parameter. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने सॉम सीरीज बुक शेयर कर दी ना, सॉम सीरीज में डॉट को लिख रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू एस एंड डैश को लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी. उसमें एक थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो है रिवर्स है इसका, जो हमारी टेक्स्ट बुक है.
अगर आप फॉर्म सीरीज कोई फॉलो कर रहा हो देखें तो वहां पर डॉट का मतलब है dr/ds और डैश का मतलब है dr/dt फॉर्म सीरीज में। सर उल्टा दे रखा है क्या? हाँ उसपे उन्होंने उल्टा दिया हुआ है, फॉर्म सीरीज पे ध्यान रखना। सर जो जो हमारी क्यों टेक्स्ट ऐसा बुक है क्यों? ये, अब उनकी नोटेशन है यार, इट इज जस्ट नोटेशन, उन्हें ये नोटेशन यूज करेंगे, उन्होंने शुरू में लिख दिया है बात ये कि वी आर टेकिंग डॉट एस, क्योंकि वहां पे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो डॉट के फॉर्मूले वो हैं जो हमने डैश पे निकाले हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ बस एक वो फर्क है थोड़ा सा। तो नाउ एक्सप्रेशन इन जनरलाइज्ड पैरामीटर, इफ योर कर्व इज आर इन आरटी, तो हमें क्या करना, आई वांट टू राइट ऑल दीज थिंग इन डॉट फॉर्म। नाउ ये जो टॉर्शन का फॉर्मूला था उसे डॉट में लिखते हैं हम। तो आर डैश से स्टार्ट करते हैं, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। सो वी हैव ऑलरेडी आर डैश आप निकाल चुके हैं, यू नो योर आर डैश इज हाउ मच, है ना। आर डैश क्या आता है, आर डॉट अपॉन मॉड ऑफ आर डॉट, है ना, dr/ds, dr/ds कैन बी रिटन एज dr/dt इनटू dt/ds। ऐसे हमने पीछे आर डबल डैश का टर्म भी निकाला था, इट वाज कमिंग आर डबल डैश कैसे निकाला था, ds ऑफ आर डैश, इसको सॉल्व किया था आर डैश की वैल्यू पुट करके, तो इट वाज कमिंग, पीछे आप देखेंगे तो एक्सरसाइज में ये आई हैव डन दिस थिंग ऑलरेडी, इट वाज कमिंग आर डबल डॉट dt/ds होल स्क्वायर प्लस आर डॉट d2t/ds2, ये सॉल्व होके आएगा, ठीक है। और सिमिलरली यू विल फाइंड नाउ आर, सॉरी ये कितना था, सर आर डैश, आर डबल डैश, यस सर सर ds और dt जो होता है वो आर डॉट मॉड ऑफ आर डॉट के बराबर होता है ना? क्या चीज, ds ओवर dt। जी, क्योंकि एस क्या होता है आपका, ठीक है एस सर। होता है लेंथ, t नॉट टू t mod of r dot ds over dt is how much, mod of r dot, okay। Similarly you will find r triple dash की वैल्यू निकालेंगे, तो द टर्म विच आई कैन राइट, इसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब r ट्रिपल डैश के लिए क्या करना है आपको, ds ऑफ r डबल डैश, इसकी वैल्यू रख के निकाल देंगे, तो इट्स वैल्यू r डैश its value will be coming r dot r double dot r triple dot dt over ds होल पावर 6, ये इसकी वैल्यू क्या कर आएगी, इसे यहाँ पर जब आप पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी, इसे आप फाइंड करेंगे, यू जस्ट चेक इट, r triple dash निकाल के इसे सॉल्व करना आप, the value of this bracket will be coming this, okay। So now when you put in the formula, तो dt over ds कितना है आपका, mod r dot होता है, so it will become r triple dot upon dt over ds means mod of r dot पावर से, है ना, ds over dt is mod r dot, ये आएगा इसका वैल्यू। now putting back in the torsion formula, इसे यहाँ पे उठा के रख दीजिए जो हमने ये निकाला torsion, so the torsion will become r dot, yes r double dot r triple dot, है ना, इसे यहाँ रख दिया हमने उठा के, देखिए इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू क्या आई है न्यूमेटर की, और नीचे आपका मॉड r डबल डॉट स्क्वायर ऑलरेडी था, मॉड r डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r डबल डैश, इसके वैल्यू डॉट के इक्वल आ जाती है, जो आपका न्यूमेटर में है r डबल डॉट डैश क्रॉस r डबल डैश
इसको I can write same as R double dot cos R double dot. हाँ देखो, इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहे, so this will become upon R dot cross R double dot dot R dot cross R double dot. ये वैल्यू आ जाएगी इसकी डिनोमिनेटर की. So this will, it is dot here, or you can say R dot cross R double dot square. ये क्या आपका? It is just simple R dot cross R double dot whole square. ये एक ही चीज है. So it will be the formula in terms of generalized parameter. ठीक है. ये वैल्यूज हमने यहाँ, ये डेनोमिनेटर कैसे, डेनोमिनेटर के दो कैसा है, जो डेनोमिनेटर है आपका कप्पा की वैल्यू अगर आपको याद हो हमने कैलकुलेट करी थी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड पैरामीटर. इस बार इट वाज r डॉट क्रॉस r डबल डॉट अपॉन मॉड ऑफ r डॉट होल क्यूब, है ना, ये आया था. तो अगर कप्पा स्क्वायर लूंगा मैं तो कप्पा स्क्वायर विल बी हाउ मच, इसका स्क्वायर हो जाएगा r डॉट क्रॉस स्क्वायर हो R जाएगा double सर dot इसका. whole square upon mod of R dot whole 6. ये वैल्यू आएगी इसकी, होल है ना? 6. हाँ, और ये कप्पा स्क्वायर ही तो है नीचे आपका. ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसकी जगह वैल्यू उठा के रख दी हमने बस. इट वाज योर कप्पा स्क्वायर, ये जो है तो कप्पा स्क्वायर की वैल्यू हमने उठा के रख दी आपके पास. फ्रॉम दिस आई पुट द वैल्यू ऑफ कप्पा स्क्वायर दिस, और न्यूमरेटर होता तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या टर्म आ रहा था, mod r dot 6. ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बस ये रह जाएगा. ठीक है. So it will be the formula in terms of generalized parameter. ये फॉर्मूले आपके पास हो गए और फाइंड करें. Let us take one problem. प्रॉब्लम्स करते हैं. फाइंडिंग टॉर्शन. इन फॉर्मूलाज को आप एक जगह, as I told you, कि just write it in some paper and keep revising. एक दो बार इसे देखोगे तो तुम्हारे याद रहेंगे. Let us take one problem. Find the curvature and torsion for the following curves. ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको नोट शेयर किए थे, टाइप हैंडरिटन नोट्स, वो टाइप नोट्स जो थे दारू सेंसर के, उसमें सब प्रॉब्लम्स दे रखी हैं. आप वहां से भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स. यहाँ पे डिफरेंट कर्व्स हैं कि आपको कर्वेचर एंड टॉर्शन निकालना. x इक्वल टू a cos u, y इज इक्वल टू a sin u, z इज इक्वल टू bu. यहाँ पर एक कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है आपको कर्व, है ना. सेकंड इज x इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू u स्क्वायर, z इज इक्वल टू u क्यूब. थर्ड, अब देखो ये जो u होता है ना, u या t, ये सब जनरलाइज्ड पैरामीटर है. कीप इन माइंड, नेचुरल पैरामीटर हमेशा s में होगा. उसके अलावा अगर u है, थीटा है, t है, दे ऑल आर जनरलाइज्ड पैरामीटर. तो यहाँ पर हम x, u का मतलब x डॉट है ये. यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड पैरामीटर यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम आपको जनरलाइज्ड पैरामीटर में गिवन है. यहाँ कर्व इज गिवन इन दिस वे, y is equal to fx, z is equal to gx. So these are the different representation of a space curve. ये इस टर्म में गिवन है. u minus u cube. सर प्रीवियस Five. स्लाइड दिखा दीजिए सर. अच्छा एक मिनट. a times, yes, this is where it is. Okay, थर्ड पेज सर, थर्ड पेज. ठीक है. जी सर. यहाँ पे करना है एक क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट में कर दे रहा हूँ. यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, व्हाट इज दिस फर्स्ट, x इज इक्वल टू a cos u, y इज इक्वल टू a sin u, z इज इक्वल टू bu, है ना. तो ये आपका क्या है, ये तो पता है आपको. फर्स्ट कर्व इज तो वेल नोन कर्व है. हेलिक्स. क्या yes हेलिक्स sir, है? r yes sir, helix. हेलिक्स है भाई.
यस सर हेलिक्स हेलिक्स का हमने कर्वेचर तो निकाला था ए अपॉन, याद है कल प्रॉब्लम जो लास्ट में कर रहे थे, हेलिक्स का कर्वेचर कितना आया था? Yes, sir. यस सर ए अपॉन Yes, ए sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस द कर्वेचर। ठीक है, अब इसका टॉर्शन और निकाल देते हैं। तो टॉर्शन के लिए बिकॉज आई टोल्ड यू आई विल हैव टू अप्लाई द डॉट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला। तो व्हाट आई नीड आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट, तीनों डेरिवेटिव चाहिए मुझे। सो आई विल फाइंड, जैसे r की टर्म्स में इफ वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ r, सो r इज गिवन, इसे इस फॉर्म में लिख लीजिए, a cos u, a sin u and bu. Okay, so you can find r dot minus a sin u, a cos u and b. You can find r double dot minus a cos u. डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू u, कीप इन माइंड है ना, माइनस a sin u and 0 and r triple dot. R triple dot will be how much? A sin u minus a cos u comma 0 or 0. Yes. ठीक, तो I want to find R dot, R double dot, R triple dot. इसे मैंने ब्रैकेट में लिख, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बताया था, x dash y dash z dash means your r dash, first r dot means, so first row is what, r dot row minus Sir, a ये- sin u सर ये equals, second is r double dot row minus a cos u minus a sin u 0. मतलब सर ये जो हमने शुरू में लिखा था t डॉट n क्रॉस n डैश, तो ये डिटर्मिनेंट उससे निकला जी, फॉर्मूला जो ड्राइव डिटर्मिनेंट का। ठीक है यही तो होता है ये। ठीक है ये तो ठीक है वेक्टर प्रॉपर्टी है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज a क्रॉस a डॉट b क्रॉस c, इसकी वैल्यू ये निकल कर आती है। ठीक हाँ, इसको मतलब हम ब्रैकेट में a कॉमन b कॉमन c से, सर ठीक है सर। ओके, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 2 0 तो विद रिस्पेक्ट टू b एक्सपेंड कर दीजिए, इसे इजीली दिख रहा है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू b एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर u प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर u, तो फाइनली इट विल बी a स्क्वायर b। ओके, और डेनोमिनेटर और निकाल लीजिए। डेनोमिनेटर आपका व्हाट वाज द डेनोमिनेटर, दिस स्क्वायर, डेनोमिनेटर ये तो था, मॉड r डॉट क्रॉस r डबल डॉट स्क्वायर, तो mod r dot cross r double dot is how much, इसका क्रॉस लेना आपको, इन दोनों का क्रॉस, ठीक है, और उसका मॉड। जब क्रॉस आप लेंगे तो क्या होगा, हाइडिंग दिस 0 minus ab sin u, and after solving minus AB sin u. हाँ, तो आफ्टर सॉल्विंग इट इज कमिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, क्योंकि मॉड है ना, मॉड तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये आ जाएगा, इसे चेक कर सकते हैं। टाउ विल बी हाउ मच, पुटिंग इन द फार्मूला a स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so a स्क्वायर is cancelled, so it is coming b upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर, so it is the torsion for the helix। कर्वेचर क्या आया था, कर्वेचर was a upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर, torsion is b upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर, ठीक है। कर्वेचर इसका था a upon a स्क्वायर plus b स्क्वायर। इसका सिमेट्रिक सा है, अगर आपके कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू में कभी, और अगर आपको ये याद है तो आप इतनी कैलकुलेशन बच जाएंगे, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, है ना। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, द कर्वेचर ऑफ द टॉर्शन या ऑफ द हेलिक्स, द टॉर्शन ऑफ द हेलिक्स, ऑप्शन दे देंगे इसमें, तो आपको अगर याद होगा आप आराम से कर दो। बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सर ये होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर जी बोलिए। सर इसमें जो हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला है r डॉट क्रॉस r डबल डैश का, तो पहले हम इसकी क्रॉस निकालेंगे ना डिटर्मिनेंट के थ्रू, उसके बाद फिर इसका वो निकालेंगे मॉड।
हाँ तो आप डायरेक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी का, ठीक नहीं, है। ये वाली की बात थोड़ी कर रहा हूँ, नीचे वाले स्टेप में कह रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया, नीचे वाले। ये जी जी हाँ, यहाँ पे आप पहले जी क्रॉस जी, ये प्रोडक्ट तो हम पहले निकालेंगे निकालेंगे। इन दोनों का, मैंने बताया हाँ, था। यही पूछ। फिर उसके बाद हम इन वोट दोनों निकालेंगे। का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आप पहले उसी तरीके से। जी 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 जी, ये ये एक पूछा वेक्टर था मैं। ठीक क्वांटिटी है आएगी, जी। है ना। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाइडिंग ठीक फर्स्ट कॉलम, Thank- देन हाइडिंग सेकंड कॉलम, देन हाइडिंग थर्ड कॉलम, ऐसे करके। ये था। हाँ, वो मैं डायरेक्ट लिख दिया आपको, क्योंकि आप वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, सो आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल द टर्म्स। वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी आपकी यूनिट 1 फिनिश नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, आज आपकी क्लास में कंटिन्यू रखूंगा। अगर क्लास एंड होगी तो आई विल कंटिन्यू इन अनदर क्लास टुडे। चलिए, ऐसे ही आप सिमिलरली यू कैन डू दिस आल्सो, से भी कर लेंगे, ये सेम है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपका एवरेज टर्म में गिवन, थर्ड में करा देता हूँ। थर्ड में इफ योर कर्व इज गिवन इन दिस फॉर्म, सपोज योर कर्व इज गिवन x, क्या था कर्व, y is equal to fx and z is equal to gx. Is if curve is given is in this form, जैसे y is equal to some x square plus some x square something, z is equal to some y square या something y x square something, x कट करना। तो ये अगर हम एक साथ लिखेंगे तो it will be representing a space curve। यहाँ पर I can consider x as a parameter। इसको अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो I can write r is equal to x fx and gx। okay, here x को I will treat as a parameter here, so this is सर the इसमें x तो दिया parametric नहीं है। equation। x तो 0 है ना जी, यहाँ पर x तो ये नहीं रखा है है। क्या, x तो दे ही नहीं रखा, x तो दे ही नहीं रखा। ये तो रखा है कि y is a function of x है और z is a function of x है। तो मैं अगर x को एज ए फ्री वेरिएबल, x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x आपका एज ए फ्री वेरिएबल है, तो अगर मैं x को x ही मानूंगा तो y कितना है fx और z कितना है gx। इस फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं से, तो अगर मैं x को t ले लूं तो व्हाट इज y, y इज सम ft, व्हाट इज z, z इज सम gt। वही तो लिखा है मैंने, ओहो, ठीक है। ठीक है। बिकॉज x इज नॉट गिवन तो इट मींस x इज अ फ्री वेरिएबल। अगर कोई चीज नहीं गिवन है तो उसका मतलब वो फ्री वेरिएबल है, उसे एज ए पैरामीटर वर्क कर सकते हो, जीरो नहीं होता है। फिक्स पॉइंट है, हैं, फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। फिक्स नहीं है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कुछ फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। है, x कुछ वेरिएबल है, तो उसे अगर मैं t मान लूं तो आई कैन राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन एज x fx gx लिख लो या t ft gt, ये की बात तो है ना। ठीक है सर, ठीक है। So if your curve is given in this form, this can be written as a parametric equation x fx gx। तो here x will be working as a generalized parameter। अब चाहे तो आप उसे t में लिख लो चाहे x में लिख लो, you can keep it as it is, एक ही बात है। okay, so now I will find r dot। अब देखो जब r dot हम निकालेंगे तो r dot का मतलब x का 1 हो जाएगा। अब dot means it is because it's a parameter, तो 1 f का कितना हो जाएगा f dash। f अब f dash मींस क्या है, क्योंकि x ये आपका x में है तो मैं With डैश respect to लिख सकता हूँ। हाँ, ये है वैसे तो डॉट, लेकिन यहाँ मैं डैश लिख सकता हूँ। और सिमिलरली g dash का मतलब g dash x। सिमिलरली r डबल डॉट विल बी हाउ मच, 0 f डबल डैश g डबल डैश। यहाँ ध्यान रखना f डैश का मतलब विद रिस्पेक्ट टू s नहीं है, क्योंकि fx है तो fx Yes, को sir, हम with एज ए, respect to x। हाँ fx आपका फंक्शन वही है, वेल नोन फंक्शन जो आप कैलकुलस में पढ़ते थे, तो यहाँ पर मैं f डैश x लिख सकता हूँ। ठीक, ध्यान रखना। r ट्रिपल डॉट विल बी हाउ मच, 0 f ट्रिपल डैश g ट्रिपल डैश। ओके, एनी कंफ्यूजन? तो हियर f डैश मींस व्हाट, एक्चुअली f डॉट है लेकिन मैं f डॉट को f डैश लिख रहा हूँ क्योंकि f ऑफ x फंक्शन सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए। चलो, सो नाउ आई विल फाइंड न्यूमरेटर r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल, है ना। ये
क्योंकि हमें क्या निकालना है इसका कर्वेचर और टॉर्शन। पहले मैं टॉर्शन More- निकाल दे रहा हूँ, टॉर्शन निकाल रहा हूँ पहले मैं। टॉर्शन का Determinant- फॉर्मूला क्या था, ये था, बताइए हाउ मच इट इज। Yes, sir. देखो अब आज Sir, हम F लिखेंगे double dash डिटरमिनेंट। हाँ F double dash G triple dash minus G double dash F triple dash यस, माइनस जी डबल डैश एफ। G double dash F triple dash. बाकी टर्म तो जीरो हो जाएंगे। देखो आई एम एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू Yes, फर्स्ट, sir. तो वन बाकी जीरो है, तो सिर्फ यही बचेगा, Mhm. है ना। एंड व्हाट अबाउट आर डॉट, और हमें ये और निकालना है। आई वांट टू फाइंड आर डबल डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, क्योंकि डेनोमीटर में क्या होता है, इसका स्क्वायर। व्हाट इज इन डेनोमीटर, इट्स मॉड स्क्वायर। सो आई विल फाइंड व्हाट इज आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इन दोनों टर्म्स में। तो क्या आएगा देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एफ डैश जी डबल डैश, फर्स्ट टर्म एफ F dash G double dash minus G dash F double dash minus G dash F double dash. सेकंड टर्म माइनस टाइम्स सेकंड टर्म्स, इसे हाइड कर लीजिए। 0 0 सर, दूसरा 0 हो जाएगा। क्यों, बस ये दोनों उसके है ना, according- क्रॉस निकाल रहा है, जी जी इससे भी जी तो जी क्या आएगा, माइनस टाइम फॉर माइनस जी डबल डैश, दिस माइनस दिस, तो माइनस जी डबल डैश। एंड थर्ड टर्म will be what, 1 into f double dash minus 0, so how much, F double dash. yeah